ओके अभी। सो हमने क्या देखा कि अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, अगर नेगेटिव हो तो रियल और इन्वर्टेड। ओके सो इसको याद कर लीजिएगा ना, ओके इट इज़ सर। इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पढ़िए अभी, अब न्यूमेरिकल्स हम करते हैं ना। और यस एक और चीज़ जान लीजिएगा अभी, है ना। यस सर। अच्छा वो मैं न्यूमेरिकल्स में बता दूंगा, चलिए ओके इसको भी लेकिन सर। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। Sir, there is only example 10 point. एग्जाम्पल 9.1 या No, sir, there is no 9.1. That's आई थिंक you have a new version of NCERT, yeah. yeah. Okay, read the example. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3.00 m. If a Meter, bus yeah. is So radius of curvature has which type of mirror we have? We rear view mirror, convex mirror used for rear view. okay, convex mirror, yeah. Wait. Yeah. Let me make the diagram first. This is convex mirror, yeah. This is convex mirror. Convex mirror. Okay, wait. So we are using convex mirror right now. So what is the radius of curvature? So convex mirror, this is pole Avi. What is the name of this point Avi? Center of curvature. Yes, And sir. what is the name of this point? Focus. And what is Focus. radius of curvature Avi? This is the distance between pole and Uh, Curvature. okay. Pole and curvature. Okay. The distance between pole and curvature is called radius of curvature. And radius of curvature has given, what is the value of radius of curvature Avi? It is 3.00 m. It means 3 meter. Yeah. Yeah. And what I will take? I will take radius of curvature as positive or negative Avi. You can say here. Radius of Curvature is curvature will be positive or negative. positive. It Positive. means plus 3 meter. Yeah. Yeah. Okay. Read. Read Avi. Read. If a bus is located at 5.00 meter It from this means mirror, if the bus is located at 5 meter from the mirror, 5 meter yeah, from the mirror, it means bus are located here 5 meter. Yeah. 5 yeah, meter from the mirror. It means what is the object distance Avi? 5 meter. 5 Okay. meter. And Yeah, 5 meter. What we will take 5 meter as negative or positive? as positive. Positive. Hmm. Where you located? I have already told you that you must have to take u always, Negative. because u lies on which axis? X dash. X dash. So you have to take u always negative Avi. Okay. Yes, sir. हम लोगों को u को हमेशा x डैश पे ही रखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इधर ही रहेगा, कभी इधर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखेंगे? इधर ही रखेंगे, है ना। तो u Yes, अगर नहीं भी समझ में आए तो हमेशा u को आपको क्या रखना है? नेगेटिव। negative. Okay, you always remember that you have to keep u always negative. Understood? Yes, sir. So आगे क्या बोल रहे हैं हमें, पढ़िए। आगे find the position, nature and size of the image. Okay. Now we have to find position, nature and size of the image. Okay. Position, Nature and size. position, nature and size, And है ना। साइज इट मीन्स मैग्निफिकेशन, है ना, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बना नहीं मेरा इमेज का, है ना। yes, तो sir. अब देखिए पोजीशन, नेचर और साइज है। मेरे को आर दे रखा है ना।
तो Yeah. आर देखा है, ये दे रखा है पोजीशन और नेचर पता करना है। तो नेचर के लिए तो मैंने बताया आपको क्या निकालना होगा, मैग्नीफिकेशन निकालना होगा अभी, है ना। Yeah. और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास दो होता है, एक होता है एच डैश बाय एच और एक होता है माइनस वी बाय यू। ये तो फॉर्मूला होता है ना, Yes, sir. है। तो मेरे को देखिए, तो यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, वी तो नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में हमें। No. बट हियर रेडियस ऑफ कर्वेचर हैज गिवन, या सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से इजिली क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ना अभी। Yes, sir. सो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। Yes. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3/2। तो फोकल लेंथ 3/2. कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/2 मीटर हो जाएगा। Meter. एंड आउट, Yes. डाउट। No, sir. ओके, सो फोकल लेंथ मेरे पास कितना आ गया, 3/2। सो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, क्या होता है मिरर फॉर्मूला हमारे पास अभी, Mirror formula is 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. गुड। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यही है मेरे पास। और देखिए, तो मेरे को Yes. f दे रख, ये f स्मॉल f है ना फोकल लेंथ, ये f मेरे को दे रखा है और u दे रखा है, इनकी मदद से हम v निकाल सकते हैं अभी, ये निकाल सकते हैं। ये मेरे को दे Yes. रखा है, ये मेरे को दे रखा है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 1/v मेरे को फाइंड करना है, माइनस 1/u इज इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा, what it may have after going this side। In plus. तो 1/f प्लस क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, अंडरस्टूड। आप देखिए, तो f का वैल्यू मेरे को दे रखा है 3/2 और u का वैल्यू मेरे को -5 दे रखा है ना। तो पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तो पुट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब पुट किए तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/f क्या है, 3/2 है ना अभी। Yes, sir. तो 1/3/2 लिखो तो 2 कहाँ चला जाएगा अभी, देखिए 3/2 डिनोमिनेटर में होता है ना, ये कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये पता है ना आपको। Yes. Yes, sir. अच्छा, ये बताइए 3/2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, इसमें वैल्यू बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए वैल्यू। Sir, can you wait for a moment? My dad is calling. ओके। Yes, sir. तो ये बात तो आपको पता है ना अभी, अगर देखिए, अब मैं इसका बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका वैल्यू Yes. हो जाएगा 3/4, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है तो ये 2 नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो ये 2 2 Yes. 4 हो जाएगा। देखिए, ये 3 कंडीशन होता है अभी, अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर सिंगल हो ना, Yes, sir. है ना, तो ये न्यूमरेटर का नीचे वाला टर्म जो होता है सी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका होता है a/b इंटू सी, जो मैंने यहाँ किया है ना, Okay, sir. व्हाट आई हैव डन हियर।
दूसरा होता है कि न्यूमरेटर सिंगल होता है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर सिंगल है, डिनोमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। तो इस Yes. कंडीशन में c जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, इसका वैल्यू आता है a इंटू सी बाई डी हो जाता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2/3 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, Okay, क्योंकि sir. डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में है। और तीसरा कंडीशन होता है कि न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर भी क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, बट डिनोमिनेटर जो है वो c बाई डी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा डी बाई सी बन जाएगा, है ना। c बाई डी बाई सी में हो जाएगा और डिवीजन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड। Understood. तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा कंडीशन है मेरे पास, पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, कौन कंडीशन है यहाँ पर देखिए तो। यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड कंडीशन है कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है। तो क्या हुआ था, डिनोमिनेटर का c कहाँ चला गया था, न्यूमरेटर में चला गया था ना। Yes, sir. और -1 बाई यू, यू का वैल्यू क्या था अभी मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू बाई यू, -5 या। Yeah. सो यू आई कैन टेक -5, 1 बाई यू इट मीन्स 1 बाई -5। गॉट इट अभी। Yes, sir. Okay. So we can take here 1 by v is equal to, I can write here 2 by 3, 2 is goes to numerator, 2 ones are 2, Yes, sir. और माइनस माइनस क्या होता है बताइए तो, Plus. प्लस, तो प्लस 1 बाय 5 हो जाएगा। अंडरस्टूड। Yes, sir. Understood. अब देखिए 2 by 3 प्लस 1 by 5, 1 by v is equal to, what is the LCM of v, 5 and 3, It is 15 है ना, इनका LCM 15 ही होगा ना। that's 15. 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आते हैं अभी, 3 के टेबल में 15 5 पे. 5, और इन 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर, एलसीएम आता है ना अभी आपको, Yes, sir. ये एलसीएम आता है ना। Yes, sir. I'm just confused. किस में कंफ्यूज हो रहे हो आप, यहाँ पे क्या किया है? Can't understand. कहाँ पर, यहाँ पर, No, no. यहाँ पर, ये पोर्शन में, यू आर कंफ्यूज इन दिस पोर्शन। हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग अभी, Yes, sir. यहाँ तक आपको समझ में आया अभी, Hmm. यहाँ से समझ में आ गया ना। Yes. तो इसके बाद आपको क्यों, मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है, देखिए तो यहाँ 3/2 डिनोमिनेटर मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। Yes. तो sir. डिनोमिनेटर जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये ऊपर जाके क्या होगा, c से मल्टीप्लाई हो जाए, c जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा मेरा a इंटू सी बाई बी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए तो आप 1 बाई वी को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 1 बाई वी, Yes. ये इज इक्वल टू मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, Yes. अब देखिए तो 1/3/2 है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 1/3/2 है। तो यहाँ c की जगह क्या है, 2 है, b की जगह क्या है, 3 है, और a की जगह क्या है, 1 है ना। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में है ना मेरा। Hmm. तो ये 2 कहाँ चला जाएगा अभी बताइए, ऊपर. ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। 1 से. तो 2 1 से कितना हो जाएगा, 2. 1 इंटू 2/3 होगा, यही होगा ना। यानी कि आंसर कितना आएगा, 2/3 आएगा। Hmm. तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 2/3 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत। No. और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, Plus. देखिए यहाँ माइनस है ना। Hmm. तो ये माइनस और ये माइनस कंसिस्ट होगा, क्या बन जाएगा, प्लस। और Plus. प्लस होने, और ये क्या है 1/5, इसको मैं एज इट इज 1/5 लिख रहा हूँ, बस यही तो किया मैंने, क्या टफ है, Yes. समझ में आया कैसे किया मैंने, Yeah. आपको डाउट। No. चलिए अब देखिए 1/v को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, अब इसका एलसीएम ले रहा हूँ अभी, कैन आई टेक एलसीएम ऑफ दिस। Yes. तो व्हाट इज द एलसीएम अभी, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 50. 15। तो अब बताइए 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है अभी, 5 पे. 5। तो जितने के टेबल में आता है पता है ना, ये 5 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, Yes. है ना। इन दोनों का जो एलसीएम, हमको एलसीएम ऐसा नंबर लेना रहता है जो इनके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए, ठीक है। Okay.
तो अब देखिए थ्री के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। Yeah. तो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है अभी? 5 टाइम्स में। 5. तो जितने टाइम्स में आएगा ना उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। Yes. तो कितना हो जाएगा? 5 टू ज़ा 10. तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे। एनी डाउट अभी? No. चलिए अब ये प्लस को मैं यहाँ प्लस लिख लूँ, कोई दिक्कत? No. चलिए अब 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है अभी बताइए? 3. 3। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा बताइए? 1 से. हाँ, न्यूमरेटर वाले पार्ट। डिनोमिनेटर के टेबल में डिनोमिनेटर कितने बार में आएगा वो देख लेंगे, और फिर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे 3 1 3। एनी डाउट अभी? No, sir. तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13। और डिवाइडेड में क्या रह जाएगा? 15। आप कोई डाउट? No. ये समझ में आया ना मैंने कैसे किया एलसीएम वाला पोर्शन? Yes, sir. ये समझ में आया ना आपको? Yes, sir. तो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया अभी? 13/15 आया। Yes. अब 13/15 जो वैल्यू आया, अब मैं 15 को क्या करूँगा अभी? 13 से डिवाइड करूँगा, Yep. है ना। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास देखिए तो अभी 1/v का वैल्यू क्या आया है? 13/15। इसी का वैल्यू आया है ना 13/15, देखिए तो, है ना। Yes. Yes. तो आप देखिए तो 1/v इज इक्वल टू क्या बचा अभी? 13/15 बचा। Yes. अब पता नहीं इक्वल टू में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अभी। Yes. तो ये 15 क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि इज इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और v किससे मल्टीप्लाई होगा? 13 से मल्टीप्लाई होगा। ये सब तो पता है बहुत, ये सब 5 6 में पढ़े होंगे आप, है ना। Yes, sir. तो ये 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में 1 से कितना हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू v को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 13v। एनी डाउट? No. अब ये 13 जो है मल्टीप्लाई में v के साथ इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 15/13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी? v होगा। ये समझ में आया? Yes. तो v का वैल्यू मेरे को कितना आया? 15/13। इसमें कोई डाउट अभी? No, sir. हाँ, तो आप देखिए तो 15/13 है, तो अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ। 13 को मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, अंडरस्टूड? v का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो कितने के टेबल में जाएगा अभी बताइए तो पहला? क्या? कितने के टेबल में जाएगा ये समझ में आ रहा है ना आपको? हेलो हेलो, Yes. आर यू गेटिंग अभी? Yep. हाँ, हाँ. ये समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ v का वैल्यू निकाल रहा हूँ ताकि मैग्नीफिकेशन मेरे को निकालना है ना। तो नेचर फाइंड करने बोला है, तो मैं बता दिया आपको कि नेचर के लिए हमको क्या करना चाहिए? मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है ना। Yes. तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नीफिकेशन निकालूंगा तो मैग्नीफिकेशन के लिए मेरे को v/u चाहिए, जिसमें मुझे u दिया हुआ है और v निकालना है ना। तो v मुझे किस फॉर्मूला से निकलेगा? मिरर फॉर्मूला से। ये समझ में आया? Yes. तो इसी मिरर फॉर्मूला का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। 1/v माइनस 1/u बना, बस ये कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, है ना। कोई डाउट हो रहा है आपको? No. अगर एलसीएम वगैरह अगर आपको डाउट हो रहा है लेने में तो बताइए, हम बता देंगे एलसीएम भी। नहीं वो आता तो किस में प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? है। यहाँ पे तो क्लियर है आगे वाला. हाँ, यहाँ तो अभी ये समझ में आया आपको? हम्म. इज इक्वल टू रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पता है ना। Yes. तो यहाँ v का वैल्यू 15/13 आया, ये समझ में आ गया? Yes. हाँ, तो अब यहाँ 13, अब v का वैल्यू 13/15 पॉइंट में निकालूंगा ना कम से कम। तो देखिए v का वैल्यू 13 को 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए 13 डिवाइडेड बाई 15 है ना। Yes. तो 13 को मैं 15 से डिवाइड करूँ तो 13 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बैठाऊंगा। ये समझ में आया? Yes. हाँ, फिर कितना हो जाएगा? 13 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7. है ना। फिर बताइए तो, फिर पॉइंट का मैं 0 लगाऊंगा तो 13 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। हाँ, फिर 5 बचेगा, तो उतना लंबा नहीं जाना, बस मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगा कितना? 1.15। समझ में आया? समझ में आया ना। Yes, sir. हाँ, तो v का वैल्यू मेरे पास क्या होगा? v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.15, 1.5. है ना। और क्या था, मीटर में था कि सेंटीमीटर में था? देखिए तो ये मीटर में है ना, Yes. तो v भी मेरा क्या में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। ये समझ में आया? Yes. देखिए तो v का वैल्यू मेरे को मिल गया ना।
तो अब v का वैल्यू मिल गया तो मैं मैग्नीफिक, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना था अभी, नेचर फाइंड करना था ना, यस और नेचर फाइंड करने के लिए मुझे मैग्नीफिकेशन जानना जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड, इसी को नेचर बोलते हैं ना। यस सर तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन जानना था, इसीलिए मैंने यहाँ मैग्नीफिकेशन के लिए u मेरे को गिवन था यहाँ पर, मैंने v भी यस निकाल लिया। अब मैं मैग्नीफिकेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस हम्म, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है अभी, एच डैश बाई एच, कहीं यहाँ हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रखा है, एच बाई, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला, आया समझ जी में? तो चलिए, तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू हो जाएगा, आया समझ में? यस तो v मेरा कितना, अब देखिए v को आप ये वैल्यू रहने दीजिए, ठीक है, अभी यही वैल्यू हम लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है। हम्म, तो 15/13, तो माइनस v की जगह क्या हो जाएगा अभी, 15/13, तो 15/13, ये समझ में 30 आया ना, v की जगह मैंने ले लिया 15/13, और डिवाइडेड यस बाय u की जगह क्या ले लूँगा अभी, u की जगह क्या ले लूँगा बताइए, तो u का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, -5 हाँ, तो यहाँ पर u की जगह मैं ले लूँगा -5, यहाँ तो कोई डाउट अभी? नो अब देखिए, तो न्यूमरेटर क्या में है अभी, न्यूमरेटर b जो है 13 जो है हाँ, 13 कहाँ चला वो जाएगा बताइए, -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, -5 के साथ हाँ, तो देखिए, तो यहाँ मैं इस उसके तरह साथ से, हाँ, तो मैं इस तरह से -15 डिवाइडेड बाय -5 इंटू 13 लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये यस किसका वैल्यू, मैग्नीफिकेशन का है, एनी डाउट? नो ये स्टेप याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, और ये दोनों फ्रैक्शन में, है ना, यस क्योंकि इसका हर जगह यूज होगा। तो देखिए, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हुआ, और 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा अभी, 3 3, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया अभी हमारे पास, 30 3/30, एनी डाउट? नो हम्म, नो तो ये मेरे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, 3/30, है ना। यस चलिए, तो अब मैग्नीफिकेशन 3/13 आ गया, तो अब बताइए मैं क्या करूँगा अभी, 13 को 3 से डिवाइड करूँगा, यस तो पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ क्या बैठेगा, 0 बैठेगा, यस तो 13 2 सा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, कितना बचा बताइए, 4 गुड। अब फिर ये पॉइंट का 0 बैठेगा, यस 13 3 सा कितना हो जाएगा अभी, 39 39 1 1, तो छोड़ दीजिए, बस दो ही वैल्यू निकालिए, तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, 0.23 आया अभी, यस तो ये 0.23 नेगेटिव तो नहीं ना आया अभी, क्या है, No. क्योंकि माइनस माइनस तो कट गए थे ना, वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। यस तो अब आप बताइए, मैग्नीफिकेशन जब भी पॉजिटिव आता है तो नेचर क्या होता है, गुड, तो यहाँ में नेचर मिल गया ना हमको, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आप समझ में आया, ये Yes. जो v मैं निकाला हूँ ना, ये प्रॉपर मैग्नीफिकेशन को फाइंड करने के लिए मैंने निकाला है ना, ताकि Yes. मैग्नीफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर पता चलता है ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आप क्लियर है, वो एक दो बार Yes. बनाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वर्चुअल इरेक्ट समझ में आ गया, आप बताइए एनलार्ज है कि डिमिनिश है, आप बताइए क्या होगा, ये होगा देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या आया है, 0.23 आया ना, 0.23 आया है, और यहाँ पर u क्या है बताइए तो, -5 माइनस, तो वो तो नेचर वाला माइनस हमें लिया, एक्चुअल में u में तो मेरे को 5 ही दिया हुआ ना अभी, यस सर हाँ, एक और तरीका ये, तो u यहाँ पर मेरे को एक्चुअल में 5 दिया हुआ, तो नेचर में मैंने माइनस लिया है ना, ताकि वैल्यू यहाँ मिरर में फुट कर सकूँ, है ना। यस सर तो u मेरे को 5 दिया हुआ है, और वैल्यू और इमेज का मतलब इमेज कैसा आया देखिए तो 1.15, है ना, इमेज क्या बना, छोटा बना है कि बड़ा बना है बताइए, u का छोटा। वैल्यू 5 है और इमेज है 1.15, बताइए कैसा बना है इमेज, छोटा हाँ, ये जो माइनस है वो कभी हम लोग इमेज मतलब नेचर लिखने में ये नहीं करते हैं, है ना, एक्चुअल में हम लोग वैल्यू देखते हैं, वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइन नहीं देखते नेचर में, तो ये 5 है, और ये इमेज जो है v आया है वो 1.15 यानी कि छोटा आया है, तो वर्चुअल इरेक्ट और क्या हो जाएगा,
स्मॉलर क्या हो जाएगा? Smaller. इन साइज। कोई डाउट? No. क्लियर? Yes. हाँ, इसको एक बार लिख लीजिए। Done, sir. ये हो गया। Hmm. ये बस समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है? Okay, sir. ये फॉर्मूला वगैरह आ गया ना? Yes, sir. हो गया ये वाला 1/v इज इक्वल टू 13/15। Yes, sir. Screenshot ले लिया. अच्छा, ले लिया आपने? Yes, sir. इनका भी ले लीजिए। अच्छा, मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, आप बनाइएगा, ठीक है? डन? Yes, sir. अब ये निकालिए तो बताइए तो क्या होता है? इसका वैल्यू बताइए तो क्या होगा? Value मतलब किस सर? इसका इसको सॉल्व कीजिए फ्रैक्शन। एलसीएम लेके ही सॉल्व कर रहे हो ना अभी आप? Yes, sir. सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यू आएगा इसका। I think your math are so weak, Avi. Yeah. Yes. Okay. Let me explain you. तो छोड़ दीजिए तब ये न्यूमेरिकल से पहले, अभी केवल आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप बेसिक्स में सीख लो मेरे से, है ना? निकला आपका वैल्यू? देखिए मेरे पास क्या था, 1/6 प्लस 1/8, यही है ना? ये समझ में आया ना? क्वेश्चन तो यही था मेरे पास। Yes. हाँ, तो 6 और 8 का आपने साइड में एलसीएम निकाला था। 2 के टेबल में कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स में। 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, है ना? तो कितना आएगा? 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा कितना आ जाएगा एलसीएम? 24 आएगा। Yes. नहीं तो एलसीएम आप इन दोनों में देखिएगा ना कि कोई भी ऐसा नंबर लीजिएगा दोनों में कॉमन हो, तो जो 6 के टेबल में भी आ जाए, जो 8 के टेबल में आ जाए। देखिए 24 जो है 6 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है ना? अब देखिए 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है अभी? नीचे को नीचे से डिवाइड करें पहले। 4। और ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अभी? 1 से. हाँ, जितने बार में आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई। और यहाँ 2 रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सपोज मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. 2 से। तो 4 2 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? फिर ये प्लस का प्लस उतारेंगे। अब 8 के टेबल में कितना? अब मान लीजिए 3/8 है, ठीक है? ये 3 है। 8 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा अभी बताइए तो? 8 3 ज़ा. 3 ज़ा। और ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 9. 9। अब 8 और 9 को ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा? 18. 18. अच्छे से ऐड कीजिए। 16. 8 प्लस 9, 8 प्लस 8 कितना होता है बताइए? 17.
8 + 8 16 होता है, तो यहाँ 9 है तो +1 होगा ना, 17 ना होगा। तो Yes. 17 बाई कितना हो जाएगा 24। समझ में आया ना। Hmm. इसी तरह से मैंने 1/u और 1/v का वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही निकाला था एलसीएम से, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। Yes. ये 3/2 को मैंने 2/3 कैसे लिखा वो तो बता दिया मैंने यहाँ पर, है ना। Yes. हाँ तो अब चलिए, तो अब आप निकालिए, है ना। 2/3 प्लस 3/5, चलिए इसका एलसीएम निकालिए और बताइए मेरे को क्या है। LCM 15. सॉल्व कीजिए उसको। एलसीएम 15 आ गया। अब 15 कैसे करना पता है ना। Yes. कीजिए। 5 plus 3/15 इसके बाद 5 + 3/15 आंसर क्या है आपका। 5 + 3/15 कैसे हो गया। अच्छा ये लिखने के बाद Yes. अब देखिए, तो यहाँ पर 5 + 3 कैसे किया आपने। 3 5 × 15 किया, Yes. तो 3 5 × 15 तो ये 5 डायरेक्ट आप यहाँ लिख लिए। 5. 3 5 × 15 किए ना आप, Yes. तो ये 5 को आपको पता है ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आया। घबरा ही नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझाना कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आराम से, क्योंकि इसको नहीं समझिएगा तो फिर लेंस मिरर फार्मूला बहुत दिक्कत है आपको बनाने में। फिर पहले इसको समझ लीजिए, है ना। देखिए 3 के टेबल में 15 मेरे पास 5 टाइम्स में आया ना, तो 5 जितने टाइम्स में आया ना उसको मेरे को इस 3 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो इसके न्यूमरेटर से जो आया है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आया, 5 टाइम्स में। Yes. अब इस 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 10. हाँ तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10. तो अब यहाँ 10 लिखूंगा, डायरेक्ट 5 नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड। सिमिलरली Yes. हाँ 10, और ये प्लस का प्लस लिखेंगे यहाँ पर हम। अब 5 के टेबल ऑफ 15 कितने टाइम्स में आएगा बताइए। 3. 3। 3 3 is अब 9. हाँ, अब ये 3 को ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिख लेना है ना। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 ज़ा 9 अब होगा, है ना। तो 10 + 9 कितना हो गया 19/15, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में। Yes. तो जितने टाइम्स में जाएगा ना एलसीएम में, एलसीएम को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखिएगा अभी, ओके। Okay. चलिए एक और बनाइए तो। 2/6 + 5/7, चलिए इसको बनाइए।
एलसीएम कितना आया अभी इसका? ये पहला वाला का एलसीएम कितना आया? 42. चलिए, तो 2/6 है और प्लस है 5/7 है ना। एलसीएम कितना आ गया? 42। अब 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है अभी बताइए? 7. अब ये 7 को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे हम। Yes. हाँ, No. 7 को डायरेक्ट लिखूंगा कि ऊपर से मल्टीप्लाई भी करना है? मल्टीप्लाई करना. हाँ, इसको पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखना है। 7 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40. 14। फिर ये प्लस का प्लस लिखूंगा। अब बताइए 7 के टेबल में 42 कितने बार में आता है? 6. अब ये 6 से क्या करूंगा? 5 को मल्टीप्लाई 30. 30 है ना। अब बताइए 44/42. 41/42 यही है ना आंसर? समझ में आया अभी कैसे निकला? हेलो। 30 को प्लस किया ना. हाँ हाँ हाँ, 44 पूरा. 44/42। आप चाहो तो इसको काट के सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 2 के टेबल से, ठीक है? समझ में है ना? चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन आप लिख लो पहले, इसको आप बना ले। मिरर फॉर्मूला ये तब बनेगा अभी जब आपको वो आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मैंने वही किया है ना। पहले ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना, और ये वाला काम जो है वो आपको प्रॉपर करना है। बाकी सब सेम टू सेम फॉर्मूला पे पुटिंग है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाइएगा। ओके सर. 2 3 Okay. 4 5 और ये 6 है ना। तो ये पांचों आपको होमवर्क में बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ना उसके बाद उसको ट्राई करना है, ठीक है। ओके. चलिए, आज के लिए ये रखते हैं अभी, ओके।